Hello everyone. So we start the second session of chapter number 4, carbon and its compounds, and today's session is to be very important because आज हम focus करेंगे on nomenclature of carbon compounds. Let's recall what we did yesterday. Carbon cannot gain 4 electrons, carbon cannot lose 4 electrons. I hope you remember that. Then the next topic, I told you that carbon forms covalent compounds, and then I explained to you that covalent compounds: hydrogen molecule, oxygen molecule, nitrogen molecule, chlorine molecule, water, ammonia, sulfur. I think I have covered all. So ये सारे structures आपको सिखाए गए थे. And at last, we also discussed the versatile nature of carbon. Right, students? And in versatile nature of carbon, we discussed about the catenation, we discussed about the branch structure, right? And we also discussed that carbon carbon forms a very strong bond because of the small size. Right, everyone? So, I hope many of you have joined. So all set. So आज के सेशन के लिए it's very necessary that you are sitting with a book and a pen, and we are going to write the structures of different type of carbon compounds. Right? So all set, everyone. Shall we begin? Yeah. So here I go. That topic I'm going to repeat it again for you. Carbon compounds are of two types. Carbon based compounds are of two types: saturated and unsaturated. बट उससे पहले आई वॉन्ट यू टू राइट वन डेफिनेशन. एक डेफिनेशन मैं चाहूँगा आप लिखिए. वॉट इज़ हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन हम किसे कहते हैं? सो कंपाउंड हैविंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. Compounds having only hydrogen and carbon are known as hydrocarbons. I'll just show you some examples. Yeah. So here I am drawing one compound. So if you look at it carefully, then this compound consists of only hydrogen and carbon, right everyone? This compound has got only hydrogen and carbon, and that's why इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन, because it consists of only hydrogen and carbon. We call it hydrocarbon. Perfect, everyone? Yes. Now going further, hydrocarbons are of two types. So I am giving the heading hydrocarbon. You also give the heading hydrocarbon. And hydrocarbon are of two types. Hydrocarbon compounds are of two types. Right? तो जिस कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा उसको हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे. हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स: saturated and unsaturated. Hydrocarbon compounds are of two types: saturated and unsaturated. Right, students? Hydrocarbon compounds two types: saturated, unsaturated. First, let's talk about saturated. Now saturated compounds means what? It means that between two carbon atom there is a single bond, right? And unsaturated hydrocarbons means that between two carbon atom there is a double bond or triple bond. If between two carbon atom there is a double or triple bond, then we call it unsaturated, right? And if there is only a single bond, we call it saturated.
Fine, students. Yeah. So I'm teaching you first today what are saturated compounds. पहले फोकस करेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स की. सैचुरेटेड कंपाउंड्स में जितने भी कंपाउंड्स आते हैं दैट फैमिली इज कॉल्ड alkanes. We call them alkanes. It ends with ane. Okay, so when a compound ends with ane, it means that it has got a single bond. There is a single bond. So alkanes. Okay, so let's go further. alkanes जो होते हैं डियर, alkanes जो होते हैं they always have a single bond between two carbon atoms. We'll take some example. The first one, methane. Second is ethane. थर्ड इज प्रोपेन. ये जो नाम मैं लिख रहा हूँ ना, उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनके नाम याद रखने हैं. ब्यूटेन एंड पेंटेन. एंड लास्ट इज हेक्सेन. एक्चुअली स्टूडेंट्स ये लिस्ट कभी एंड नहीं होती. आफ्टर हेक्सेन वी हैव हेप्टेन, ऑक्टेन, नैनेन, डेकेन. बट यू नीड टू रिमेंबर टिल 6. इट्स मोर देन इनफ फॉर यू. ओके. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ऐसे याद करवाता हूँ, मेरी इंग्लिश की पढ़ाई बहुत परफेक्ट है. आई रिपीट, मेरी इंग्लिश की पढ़ाई बहुत परफेक्ट है. अगर आप इसको याद कर लोगे ना इस शॉर्ट वे में, तो आपको सारे के सारे कंपाउंड्स लाइन से लर्न हो जाएंगे. फिर से सुनो, मेरी इंग्लिश की पढ़ाई मतलब प्रोपेन, बहुत परफेक्ट है. राइट. सो दिस इज़ द शॉर्ट वे टू रिमेंबर मीथेन टू हेक्सेन. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ रिपीट करिए अपने घर पे. मेरी इंग्लिश की पढ़ाई बहुत परफेक्ट है. स्टूडेंट्स यहाँ से मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा ही चल रहा है, परफेक्ट ही चल रहा है. आई डोंट नो व्हाई यू आर टेलिंग मी दैट द स्क्रीन इज ब्लर. द नेटवर्क इज क्वाइट गुड ओवर हियर. राइट. जस्ट चेक योर कनेक्टिविटी एवरीवन. फाइन. सो मेरी इंग्लिश की पढ़ाई बहुत परफेक्ट है. सो दिस इज़ द शॉर्टकट टू रिमेंबर all compounds from methane to hexane. Okay, so students, I request you all to please note down, मेरी इंग्लिश की पढ़ाई बहुत परफेक्ट है. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन. कंफर्म. शॉर्टकट याद रह गया. अब इसके फॉर्मूलाज कैसे याद रखने हैं वो देखिए. नाउ सी स्टूडेंट्स, ऑलवेज लर्न लाइक दिस. Always learn like this. Methane has got 1 carbon, ethane has got 2 carbon, propane has got 3 carbon, butane has got 4 carbon, pentane has got 5 carbon, and hexane has got 6 carbon. Please remember like this. Methane 1 carbon, ethane 2 carbon, propane 3 carbon, butane 4 carbon, pentane 5 carbon, and hexane 6 carbon. Confirm? अब लेट्स बिगिन फर्स्ट विथ मीथेन. मीथेन के पास सिर्फ एक ही कार्बन होता है सर, और उस कार्बन की चारों वैलेंसी, ऑल द 4 वैलेंसी आर टेकन बाय हाइड्रोजन. हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज ऑल इट्स 4 वैलेंसी. राइट. सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन. इफ दे आस्क मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको लिखना है CH4. CH4 इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. एंड इफ दे आस्क इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इंस्टेड ऑफ सिंगल बॉन्ड यू हैव टू मेक 2 डॉट्स. यू रिमेंबर व्हाट डज 2 डॉट्स मीन्स? 2 डॉट्स मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. दिस 2 डॉट्स मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन. So
ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. सो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. दिस इज ओके एवरीवन? क्लियर? ओके. So methane has got only one carbon. Now if I talk about ethane, now ethane में there are two carbons. So let's write two carbons here. Let's make two carbon first. And इस कार्बन की एक वैलेंसी यूज्ड है. So remaining three valencies will be taken by hydrogen. And this carbon's one valency is used. So remaining three valencies will be taken by hydrogen. So C2, H 1 2 3 4 5 6. So what's the molecular formula? C2H6. ओके. अब देखो इसका जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे ना, इट्स वेरी सिंपल. सी, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4. इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4. राइट? 1 2 3 4, 1 2 3 4. अब हाइड्रोजन सब जगह है, लाइक दिस, एंड एवरी हाइड्रोजन हैज़ गॉट 1 1 इलेक्ट्रॉन. सो ये हर हाइड्रोजन का मैंने 1 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया. राइट? सो रिमेंबर दैट ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. बट हमें वो सर्कल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स. सो डायरेक्टली आपको क्या करना है, सिंगल लाइन की जगह 2 डॉट्स लगा देने. इंस्टेड ऑफ सिंगल लाइन यू हैव टू पुट 2 डॉट्स. So this 2 dots means that this carbon and this hydrogen are sharing 1 1 electron. Is that clear everyone? Now it's clear, electron dot structure? Yeah. Okay. So this is methane. Next is ethane. Right? Now I come to propane. Let's come to propane. And now let's do it with me. बनाइए आप. 3 कार्बन रख दीजिए लाइन से एंड पुट हाइड्रोजन. बस उसको सभी तरफ से हाइड्रोजन से कवर कर लो. ऑटोमेटिकली इट विल बिकम परफेक्ट. कवर ऑन ऑल साइड्स. यस, हमेशा 1 लाइन मतलब 2 डॉट्स होता है, कंफर्म. क्रिएटिव गेमर सर, हमेशा 1 लाइन मीन्स 2 डॉट्स, कंफर्म. राइट? एंड डोंट से 1 लाइन, से 1 बॉन्ड. That 1 bond means 2 dots and 2 dots means 2 electrons. So this is propane students. बताइए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ ऊपर क्या लिखूँ मैं? कार्बन 1 2 3 and hydrogen 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so C3H8. Confirm students? Now H6 नहीं है भाविका दीदी, it is H8. Yeah. एंड लेट्स मेक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जैसे मैंने आपको बताया ना, सिंगल बॉन्ड की जगह 2 डॉट्स लगा दीजिए. इंस्टेड ऑफ सिंगल बॉन्ड जस्ट पुट 2 डॉट्स. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन. Okay, this is the electron dot structure of propane. And similarly students, butane, pentane, hexane, you make it yourself. Butane मतलब C4H10, you make it yourself. Pentane C5H12 and hexane C6H14. Hexane C6H14. Yes students, so here we cover everything: methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane. ठीक है. मेरी इंग्लिश की पढ़ाई बहुत परफेक्ट है. Is it clear everyone? Okay, so here we complete the alkane family. But students, before I go further, I want to tell you something.
एक जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी प्लीज़ मेंशन कीजिए। CnH2n+2, CnH2n+2, CnH2n+2 is the general formula, to find the molecular formula of alkene। मतलब देखिए, जैसे मुझे प्रोपेन का फॉर्मूला पता नहीं है एंड आई वांट टू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन नंबर 3 पे आता है, तो हमें n की जगह 3 रख देना है, इंस्टेड ऑफ n पुट 3, तो क्या हो जाएगा C3H, 2 3 6, 6 + 2 8। सो प्रोपेन का फॉर्मूला हो जाएगा C3H8। इज इट ओके एवरीवन? सिमिलरली अगर आप n की जगह 6 रखिए, yes, it's necessary to learn general formula. If you are in Gujarat board then it's very very necessary, 1 marks में तो आता ही है, आप अपनी गाला बुक्स में देखिए, it is always asked। हेक्सेन, हेक्सेन में इंस्टेड ऑफ n you write 6, so C6H, 2 6 are 12, 12 + 2 14, तो ये हो जाएगा C6H14। confirm? So likewise I am putting the formula of all। So all these are alkanes। confirm students? Now I am teaching you the next topic, that is alkenes। alkene मतलब क्या स्टूडेंट्स? alkene मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। whenever कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, so we call it alkene। it is compulsory कि alkene में मिनिमम 2 कार्बन होने ही चाहिए। it's compulsory that in alkene it must have minimum 2 carbons। इसीलिए alkene always begins with ethene। alkene हमेशा ethene से स्टार्ट होता है। समझ गए क्यों? क्योंकि alkene मतलब मिनिमम देयर शुड बी हाउ मेनी कार्बन? 2 कार्बन, और 2 कार्बन वाले का नाम क्या है? यस, मीथेन मतलब 1 कार्बन, इथेन मतलब 2 कार्बन। सो 2 कार्बन का नाम इथेन है, लेकिन आल्कीन में लास्ट में ENE आता है ना, इसीलिए ANE बन जाएगा ENE। नाउ ENE मतलब डबल बॉन्ड, ENE ऑलवेज मीन्स डबल बॉन्ड। इथीन, नेक्स्ट प्रोपीन, नेक्स्ट ब्यूटीन, pentene and so on। yes you have to learn formula dear, पहले बात हो गई हमारी। so ethene, propene, butene, pentene, hexene and all। confirm everyone? चलिए, now alkene is very interesting, let's begin। so here I am giving the heading alkene। let's give the heading alkene। now alkene means सबसे पहला जो alkene है, it is ethene। the first alkene is ethene। so in ethene between 2 carbon how many bonds? yes, double bond। between 2 carbon there is double bond, right। तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी यूज्ड है। आई रिपीट, इस कार्बन की 2 वैलेंसी यूज हो गई है। बाकी कितनी वैलेंसी बची? टोटल वैलेंसी 4 होती है, 4 में से 2 वैलेंसी यूज हो गई, रिमेन्स हाउ मेनी? यस, 2 मोर रिमेनिंग। तो यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। सेम वे विद दिस कार्बन, इसकी 2 वैलेंसी यूज्ड है, सो हाउ मेनी वैलेंसीज आर रिमेनिंग? 2। so you will have 2 hydrogen। okay, somebody is asking alkene मतलब क्या? alkene मतलब एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन के बीच में there should be double bond, between 2 carbon atom there should be a double bond, we call it alkene। okay, so this is ethene students।
अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? हाउ मेनी कार्बन? 2 कार्बन। सर हाइड्रोजन को ऊपर नीचे बाजू में किधर भी लिख सकते हैं, हाँ किधर भी लिख सकते हैं। सपोज आपको यहाँ नहीं लिखना है, आपको नीचे लिखना है, तो आप नीचे भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसका फॉर्मूला है C2H4 बिकॉज 2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, सो C2H4। ठीक है, आई होप बहुत ईजी है, मैथ्स की तरह है सर, जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। C2H4। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताइए कैसा होगा। देखो, कार्बन कार्बन, आपको मैंने क्या सिखाया था? सिंगल बॉन्ड मतलब 2 डॉट्स, लेकिन यहाँ तो डबल बॉन्ड है, तो कितने डॉट्स हो जाएंगे? यस करेक्ट, 4 डॉट्स। यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, हियर ऑल्सो सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हो तो 2 डॉट्स लगा देने के, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड डबल बॉन्ड हो तो 4। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स? चलो, इथीन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, एनी डाउट्स? ओके, नाउ नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोपीन। आई रिपीट, वी आर स्टार्टिंग विथ प्रोपीन। चलिए सर, हाउ टू स्टार्ट प्रोपीन? कैन यू टेल मी प्रोपीन मीन्स? प्रोपीन मीन्स हाउ मेनी कार्बन? 3 कार्बन, 1 2 3। propene means 3 कार्बन। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, 3 कार्बन का मतलब होता है बिटवीन 2 कार्बन्स देयर शुड बी अ डबल बॉन्ड, और यहाँ आप रख सकते हो सिंगल बॉन्ड। आप उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ सिंगल वहाँ डबल तो भी चलेगा। ओके, सो डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। अगर यहाँ सिंगल यहाँ डबल करोगे तो भी चलेगा, बट रिमेंबर दैट किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही होता। ओके, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही होता। सो यहाँ तो आप इसको यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, आपकी मर्जी। राइट, लेट्स स्टार्ट। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी यूज्ड है? इस वाले कार्बन की? यस टेल मी। यस, 2 valencies are used. Remains how many valency? How many valencies are remaining? 2. So put here hydrogen and here also put hydrogen. In the same way, now think of this carbon. इस कार्बन की कितनी वैलेंसी यूज्ड है डियर? 2 + 1 3। ठीक है, यस इट्स कंपल्सरी, डबल बॉन्ड का कंपल्सरी है जो आपने लिखा, करेक्ट। कार्बन के 2 वैलेंसी यहाँ पे है, 1 वैलेंसी यहाँ पे, टोटल 3 वैलेंसी यूज हो गई। रिमेन्स ओनली 1, सो पुट ओनली 1 हाइड्रोजन हियर। एंड व्हाट अबाउट दिस कार्बन? इस कार्बन की सिर्फ एक ही वैलेंसी यूज्ड है, सो 3 वैलेंसीज आर रिमेनिंग, सो पुट 3 हाइड्रोजन्स देयर। एनी डाउट्स? सो दिस इज प्रोपीन। सो काउंट कार्बन 1 1 2 3, सो ये हो गया C3। H 1 2 3 4 5 6, H6, सो C3H6। ओके, अरे लवीना दीदी आप लेट ज्वाइन हुए हो। आल्कीन में मिनिमम 2 कार्बन होते हैं, मिनिमम 2 कार्बन होते हैं, और मीथेन के पास सिर्फ एक ही कार्बन होता है, इसीलिए आल्कीन हमेशा इथीन से स्टार्ट होता है, मीथेन से नहीं स्टार्ट होता है। सो आल्कीन में आपको कभी मीथेन नहीं मिलेगा बिकॉज इट नीड्स मिनिमम 2 कार्बन एटम्स। चलो, अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लेट्स बिगिन। कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड मीन्स 4 डॉट्स, हियर देयर इज सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो आई होप सबको परफेक्ट समझ में आ ही गया होगा। सो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा। yes students, now I'll be just waiting for you. I request you कि ब्यूटीन आप लोग खुद ट्राई कर लीजिए, ब्यूटीन कैसे बनेगा। ओके, ब्यूटीन, ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन्स, 4 कार्बन्स, 1 2 3 4। बिकॉज देखो
मीथेन में एक कार्बन होता है, इथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन एंड ब्यूटीन हैज़ गॉट 4 कार्बन. सो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं. व्हाट अबाउट हियर? सिंगल बॉन्ड. एंड व्हाट अबाउट हियर? सिंगल बॉन्ड. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. नाउ रिमेनिंग आप देखिए कहाँ कितने हाइड्रोजन लगाने हैं. जस्ट चेक द वैलेंसी. इस कार्बन की 2 वैलेंसी यूज्ड है, सो 2 वैलेंसीज कैन बी टेकन बाय हाइड्रोजन. इस कार्बन की 2 + 1 3 वैलेंसीज आर यूज्ड, सो रिमेनिंग 1 वैलेंसी इज टेकन बाय हाइड्रोजन. यहाँ पे कार्बन की 2 वैलेंसी यूज्ड है, सो इट विल हैव 2 हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन विल हैव 3 हाइड्रोजन. इज दैट क्लियर एवरीवन? सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8. हाँ सर, मैंने एक ही डबल बॉन्ड रखा है. जस्ट चेक इट प्रॉपरली. आई हैव टेकन ओनली 1 डबल बॉन्ड बिकॉज हाइड्रोकार्बन मीन्स हम जिस अल्कीन की बात कर रहे हैं, इन एवरी कंपाउंड इट हैज़ गॉट ओनली 1 डबल बॉन्ड. एवरी कंपाउंड हैज़ गॉट ओनली 1 डबल बॉन्ड इन दिस फैमिली. विच फैमिली? अल्कीन फैमिली. चलो, इज दैट क्लियर एवरीवन? और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैं नहीं बना रहा, यू डू इट योरसेल्फ. ओके. एंड पेंटीन ऑल्सो प्लीज ट्राई इट योरसेल्फ. पेंटीन मतलब 5 कार्बन, राइट? सो 2 थिंग्स आई लीव इट फॉर यू. मैं यहाँ पे सिर्फ नोट कर लेता हूँ. पेंटीन एंड हेक्सीन. काइंडली कंप्लीट बोथ योरसेल्फ. राइट? Now the next topic that we are going to start is alkyne. Alkyne. Now what is alkyne? Alkyne means between two carbon atom there should be triple bond. यस सर, हितेन उतवानी सर, सॉरी. अल्कीन का जनरल फॉर्मूला मैं लिखना भूल गया. हितेन सर ने याद करवा दिया मुझे. यस, द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n. अल्कीन जनरल फॉर्मूला CnH2n. सी फॉर एग्जाम्पल प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं ना, तो यहाँ पे अगर आप N की जगह 3 रखोगे ना, तो C3H2 3 6, सो C3H6. देखिए यही हो जाएगा प्रोपीन, राइट? सो इफ इन 1 मार्क आपको कोई भी फॉर्मूला फाइंड करनी हो, सो यू कैन यूज द जनरल फॉर्मूलाज. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट alkyne. Alkyne means between 2 carbon there should be a triple bond. Now let's begin first with ethyne. अब वही क्वेश्चन शायद कोई फिर से पूछेगा, सर मीथाइन क्यों नहीं? वाई वी कैन नॉट राइट मीथाइन? बिकॉज अल्काइन बनाने के लिए वी नीड मिनिमम 2 कार्बन एटम्स. टू मेक अल्काइन वी नीड मिनिमम 2 कार्बन एटम्स. Because we need minimum 2 carbon atoms, so the first structure will be ethyne, right? चल, let's start. Ethyne. So ethyne में 2 कार्बन के बीच में there is a triple bond. So इस कार्बन की 3 वैलेंसी यूज्ड है. So how many valencies are remaining? Yes, only 1. So that 1 valency will be taken by hydrogen. And this carbon also has got 3 valencies. Remaining 1 valency will be taken by hydrogen. So this is ethyne. Any doubt students? And इसका molecular formula क्या लिखूँ? C2H2. C 2 carbon and 2 hydrogen. और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड है. So instead of triple bond, I am putting 1, 2, 3, 4, 5, 6 dots. And here single bond means 2 dots. And here single bond means 2 dots.
Confirm everyone. Any questions? Okay, so this is ethine. Ethine. The next we have to write, we have to draw propine. Propine. Right. Now propine means three carbons. One, two, three. अगेन किसी भी दो कार्बन के बीच में पुट ट्रिपल बॉन्ड. पुट ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड विल बी ओवर हियर, बिकॉज अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ एक ही होता है और अल्कीन में डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही होता है. ठीक है, सो डोंट मेक अ मिस्टेक. अब सोच के बताइए इस कार्बन की कितनी वैलेंसी यूज्ड है. 1 2 3. 1 2 3. So remaining one will go with propine. इस कार्बन की कितनी वैलेंसी यूज्ड है. 3 + 1 4. ओके, 3 + 1 4. तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा. ओके, आई रिपीट, बीच में जो कार्बन है ना, इसकी 3 + 1 सारी वैलेंसीज यूज्ड है, तो इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा. एंड दिस कार्बन हैज़ गॉट 1 वैलेंसी यूज्ड, सो इट विल हैव 3 हाइड्रोजन्स. है ना सर, एकदम क्लियर. प्रैक्टिस करोगे ना मेरे साथ साथ तो सब कुछ क्लियर होता जाएगा. सो C3H4 इज प्रोपाइन और ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. yes students, I hope it is better clear than before. पहले भी आपने अपने ट्यूशन क्लासेस पे, स्कूल्स पे ये सब किया होगा. होप आई कुड मेक इट बेटर फॉर यू टुडे. राइट, सो प्रोपाइन क्लियर. yes, इथाइन रिपीट. ओके, between two carbon there is a triple bond. so इस कार्बन की 3 वैलेंसी यूज्ड है, तो हम सिर्फ एक ही हाइड्रोजन यहाँ रखेंगे. और इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी यूज्ड है, सो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आएगा. दैट्स हाउ टू मेक इथाइन. ओके एवरीवन, चलो लेट्स गो फर्दर. नाउ स्टूडेंट्स, ब्यूटाइन एंड पेंटाइन, दैट्स योर होमवर्क, दैट यू डू इट योरसेल्फ. Fine. Now, having understood this, we go further. First, you open your textbooks, everyone. We are on page number 63. Saturated and unsaturated carbon compounds. सर ब्यूटाइन बना दीजिए प्लीज़. ओके, ब्यूटाइन बना दीजिए प्लीज़. ये मैंने बना दिया ब्यूटाइन. ब्यूटाइन में कितने कार्बन होते हैं सर? मैं तो सब भूल जाता हूँ, आप याद करवाना मुझे. कितने कार्बन होते हैं ब्यूटाइन में? 4. ओके, थैंक यू अनेरी. 1 2 3 4. राइट, ब्यूटाइन हैज़ गॉट 4 कार्बन्स. या सो यहाँ पे मैं ट्रिपल बॉन्ड रख देता हूँ, देन सिंगल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड. अब वैलेंसीज आप सोच के बताइए मुझे. टेल मी, हियर ऑन द फर्स्ट कार्बन, shall I put any hydrogen here? Shall I put any hydrogen here? Yes or no? Yes, Bhavika is saying only one hydrogen. Perfect. Okay. Second carbon पे कितने hydrogen रख दूँ सर? On second carbon, how many hydrogen? Yes, Bhavika, perfect. No hydrogen. Yes, correct. Nothing, correct. Now, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? थर्ड कार्बन. ऑन थर्ड कार्बन, yes, 2 हाइड्रोजन. ऑन थर्ड कार्बन 2 हाइड्रोजन. परफेक्ट. रोशन, सिंधु, मोहित सर, perfect. अनीशा and all perfect. And on this carbon, how many hydrogen? 3. Confirm. So ब्यूटाइन, कौन है हमारे क्रिएटिव गेमर सर? ऑल डन, कन्फर्म. ब्यूटाइन. सो ब्यूटाइन इज C3
एच कितना है, 1 2 3 4 5 6, ओ C4, आई एम सॉरी, C4H6, या दैट्स क्लियर. अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैं नहीं बना रहा डियर, यू डू इट योरसेल्फ एंड लेट्स मूव फर्दर. अब ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ, काइंडली यू रीड इट योरसेल्फ. Right, so all this is explained, what is saturated, what is unsaturated, in detail I have explained you. Now please come to chain, branches and rings. Again Deep Pursnani is asking general formula. So CnH2n minus 2, this is the general formula, this is the general formula. ओके अब देखो स्टूडेंट्स, एक पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया. देखो आल्केन में है ना, आल्केन में CnH2n प्लस 2, इसमें प्लस 2 आएगा. आल्कीन में आएगा CnH2n और आल्काइन में आएगा CnH2n माइनस 2. प्लस 2, पहले देखो प्लस 2, देन ओनली देखो CnH2n सब में है. इसके पास प्लस 2, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास माइनस 2, प्लस 2 नथिंग, माइनस 2. CnH2n plus 2, only CnH2n and CnH2n minus 2. So these are the general formulas of alkane, alkene and alkynes. Confirm everyone? Okay dear, going further. Now starting with chain, branches and rings. Chain, branches and rings. ठीक है, चलिए. Now first of all I need to make two structures for you. If possible आप भी अपने नोटबुक में इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करिए. Please make this structure, and here also make one more structure. I have added one carbon here. So students, here I have made two structures. Okay, here I have made two structures. ठीक है. Now could you count number of carbon and number of hydrogen here? Could you please count number of carbon, number of hydrogen? यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों में काउंट करना. दोनों में नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए और नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कीजिए इन बोथ द स्ट्रक्चर्स. अनेरी हैज रिटन C5H10. फर्स्ट में C5H10, नो, अग्रता इज करेक्ट. C5H12, ओके. C5H12 in both, right? In both it is C5H12, right? Now my question is, please listen carefully and reply. Both have same molecular formula, yes or no? दोनों का molecular formula same है, C5H12. Yes, okay. So both the compounds have got the same molecular formula, but are the structure same? देखने में ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपको सेम दिख रहा है? इज द स्ट्रक्चर सेम? नो, राइट? स्ट्रक्चर्स आर नॉट सेम. सो प्लीज मेंशन दैट compounds having same molecular formula but different structural formula are called isomers.
Okay, compounds having same molecular formula but different structural formula are called isomers. तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. Isomers means, let's repeat, having same molecular formula but different structural formula. So they are isomers of each other. So in exam a question might be asked to you. कैसे क्वेश्चंस आएंगे? Let's see. Can I turn the page? Can I come to the next page now? Okay. Let's start the topic of isomers. Right? Let's start the topic of isomers. So isomers में first of all, everybody please give the heading isomers of butane. Please give the heading isomers of butane. Right? Please give the heading isomers of butane. Alright students, now butane means having 4 carbon atoms. तो पहले आप 4 कार्बन एटम्स लाइन से रख दीजिए एंड सराउंड इट विथ ऑल हाइड्रोजन. आसपास सब जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू वैलेंसी. मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? हाउ टू ड्रॉ आइसोमर्स. आइसोमर्स ड्रॉ करने का ट्रिक सिखा रहा हूँ. आइसोमर्स ड्रॉ करने का ट्रिक सिखा रहा हूँ डियर. राइट, सो 4 कार्बन एंड सब जगह हाइड्रोजन पुट कर दीजिए. सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटेन. एम आई क्लियर? एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन. नॉर्मली ब्यूटेन हम इस तरह बनाते हैं. नाउ नेक्स्ट अगेन, नाउ कीप 3 कार्बन इन अ लाइन. और जो 4th कार्बन बचता है ना, वो आप कहाँ रखिए? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी रखिए. बट अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री IUPAC रूल्स यू कैनॉट कीप द ब्रांच. कार्बन अगर आप यहाँ नीचे रखेंगे ना तो उसको ब्रांच बोलते हैं. यू कैनॉट कीप द ब्रांच अंडर फर्स्ट कार्बन. आई रिपीट, यू कैनॉट कीप द ब्रांच अंडर फर्स्ट कार्बन. सो विच इज़ द फर्स्ट कार्बन? दिस वन और दिस वन? ये फर्स्ट कार्बन है कि ये फर्स्ट कार्बन है? डाउटफुल है ना? विच इज़ द फर्स्ट कार्बन, दिस वन और दिस वन? येस, बोथ. करेक्ट. इफ यू लुक इट फ्रॉम दिस साइड देन दिस इज द फर्स्ट कार्बन, and if you see from this side then this is the first carbon. it means कि मैं यहाँ पे भी ब्रांच नहीं लगा सकता, यहाँ पे भी ब्रांच नहीं लगा सकता. बचा क्या? बचा सिर्फ ये, सिर्फ यहीं ब्रांच लगा सकता हूँ. आई कैन पुट ब्रांच ओनली हियर. सो हियर 1 कार्बन इज देयर. नाउ पुट वैलेंसीज. अकॉर्डिंग टू वैलेंसी चेक करो कितने हाइड्रोजन लगाएंगे. इस कार्बन की 1 वैलेंसी यूज्ड है, सो रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन. हियर ऑल्सो 3 हाइड्रोजन. इस कार्बन की 1 2 3 वैलेंसीज आर यूज्ड, सो ओनली 1 हाइड्रोजन. तो स्टूडेंट्स इन दोनों कंपाउंड्स पे आप चेक करो, देयर आर 4 कार्बन्स एंड 10 हाइड्रोजन. सो आर दे आइसोमर्स ऑफ ईच अदर? आर दे आइसोमर्स ऑफ ईच अदर? यस. अब see, generally Gujarat board never asks you about giving perfect names, but it's better that you learn names also. CBSE में ये टॉपिक ओमिट है, बट CBSE ये टॉपिक आपको 11th में बहुत काम आने वाला है. वेरी वेरी यूजफुल टू यू. राइट, अब इसका नाम कैसे देंगे? आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. इसका नाम है आइसो प्रोपेन. अब ये नाम कैसे पड़ा, प्लीज अंडरस्टैंड. branch is under second carbon. branch is under second carbon. whenever the branch is under second carbon उसको आइसो बोलते हैं. I repeat, whenever the branch is under second carbon उसको आइसो बोलते हैं. okay, whenever the branch is under second carbon we call it iso. and total how many carbons are there? 4. so I'm sorry, it is isobutane. by mistake I have written propane. it's isobutane because the branch is under second carbon. whenever the branch is under second carbon we call it iso. इसका एक और नाम भी है स्टूडेंट्स,
Shall I explain? Yeah. See, कैन एनीवन टेल मी कि यहाँ मैं साइड में एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसका नाम क्या है? यस, इसका नाम है मीथेन, करेक्ट? अगर मैं ओके, परफेक्ट परफेक्ट, एवरीबडी सुपर, माइंड ब्लोइंग। अगर मैं मीथेन में से एक एच हटा देता हूँ, अगर मैं मीथेन में से एक एच हटा देता हूँ तो इसको बोलेंगे मिथाइल। व्हाट इज इट कॉल्ड? मिथाइल। यस, परफेक्ट। सो प्लीज़ चेक करो, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, इज इट मिथाइल? इज दिस मिथाइल? यस, ये मिथाइल है ना? या ये मिथाइल कौन से कार्बन के पास है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मिथाइल इज इट विच विच कार्बन? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड? सेकेंड, परफेक्ट। सो सेकेंड कार्बन के पास मिथाइल है, सो टू मिथाइल। अब इस मिथाइल को भूल जाओ। अब कितने कार्बन्स बचे? अब कितने कार्बन बचे? प्लीज काउंट। 1 2 3। मिथाइल को भूल जाओ, अब कितने कार्बन बचे? 3। तो इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। द अदर नेम इज 2 मिथाइल प्रोपेन। सो आई जस्ट रिपीट एवरीवन। So, total there are 4 carbons. Total there are 4 carbons. But जो branch है ना, it is below second carbon. The branch is below second carbon. Right? तो ये जो branch है ना, this branch is methyl. Because CH3 stands for methyl. Methane में से एक hydrogen hide करो, it's called methyl. So 2 methyl and remaining 3 carbons are there. So 2 methyl propane. यस, कन्फर्म। सो ब्यूटेन के दो आइसोमर्स होते हैं। ब्यूटेन हैज़ 2 आइसोमर्स, वन इज नॉर्मल ब्यूटेन एंड अदर इज आइसोब्यूटेन, करेक्ट? सो दीज आर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। कन्फर्म? प्लीज नोट डाउन और अ स्क्रीनशॉट। यस, इथाइल, प्रोपाइल सब लर्न करना है डियर। या नेक्स्ट गो फर्दर। अभी हम स्टार्ट करते हैं आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। लेट्स गिव द हेडिंग आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। Isomers of pentane. Let me start. Ready? So first I am making normal pentane for you. So this is the normal pentane. This is the normal pentane. अब नॉर्मल पेंटेन बनाने के बाद जस्ट रिमूव 1 कार्बन, मीन्स आउट ऑफ 5 कार्बन यू मेक 4 कार्बन। अब स्टूडेंट्स, 5th कार्बन को कहाँ रखूँ? फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे के फोर्थ पे, कहाँ रखा जाए? वेयर शुड आई कीप द रिमेनिंग कार्बन? Somebody is replying second, somebody is replying second or third. Okay, now let's understand. First of all, I am keeping it at second. मैं उसको second पे रख रहा हूँ। I am putting at second and remaining everywhere I am putting hydrogen. Remaining everywhere I am putting hydrogen. Right? So remaining I am putting hydrogen. तो क्या करना है स्टूडेंट्स आपको?
सबसे पहले सेकंड कार्बन में ये जो ब्रांच है, दिस ब्रांच, इसका नाम बताइए प्लीज, इस ब्रांच को क्या बोलेंगे? इस ब्रांच को बताइए क्या बोलेंगे? यस परफेक्ट, मिथाइल। यस यस यस, मिथाइल मिथाइल, यस। एंड मिथाइल इज बिलो विच कार्बन? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ? सो इसको नाम रखिए टू मिथाइल, टू मिथाइल। एंड अब इस मिथाइल को भूल जाइए। रिमेनिंग हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन अ स्ट्रेट लाइन? प्लीज काउंट। 1 2 3 4। सो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। एनी डाउट्स? अच्छा, इसका दूसरा नाम कौन बताएगा? हु विल टेल मी द अदर नेम? अदर नेम, अदर नेम? Yes, other name is isopentane. Isopentane, perfect. Confirm. Isopentane. Right students? अब स्टूडेंट्स माय क्वेश्चन इज, जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेकंड पे रखा, अब मैं इसको थर्ड पे रख रहा हूँ. 1 2 3 4 एंड हियर आई एम पुटिंग कार्बन ऑन थर्ड. सो प्लीज टेल मी, ये जो मैंने ब्रांच रखी है वो मैंने कौन से कार्बन पे रखी है? The branch is below which carbon? Aneri is saying 2, Het Patel is saying 2. Okay, yes, correct answer is मैंने second पे ही रखा है. If you look from left side, it is a third carbon, and if you look from right side, it is a second carbon. So which one to count, third or second? Third or second? So remember that chemistry says that हमें उसको वही नंबर देना है विच इज़ द लीस्ट. अगर यहाँ से 3 है, वहाँ से 2 है, सो विच वन इज़ द लीस्ट? द लीस्ट वन इज़ 2, राइट. तो इसको हम सेकेंड कार्बन काउंट करेंगे, इसको हम थर्ड कार्बन नहीं बोलेंगे, वी कॉल इट सेकेंड कार्बन ओनली. और सेकेंड कार्बन पे ऑलरेडी ब्रांच रख चुके हैं, तो यहाँ पे फिर से नहीं रख सकते. एम आई क्लियर? ऑलरेडी सेकेंड कार्बन पे ब्रांच है, अगेन वी शुड नॉट पुट ऑन सेकेंड कार्बन. ओके या, तो यहाँ हम सेकेंड कार्बन पे ब्रांच नहीं रख सकते, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. फर्स्ट पे रख नहीं सकते, दिस इज सेकेंड, दिस इज ऑल्सो सेकेंड, और यहाँ पे भी नहीं रख सकते. नाउ व्हाट टू डू? इंस्टेड ऑफ 4, कीप 3 इन अ लाइन. 3 को स्ट्रेट लाइन में रखिए. एंड फोर्थ एंड फिफ्थ कीप बोथ ऑन सेकेंड. कीप 2 ब्रांचेस ऑन सेकेंड. अब एक नया क्वेश्चन आपके पास आएगा कि सर एक कार्बन को कितनी ब्रांचेस मिल सकती है? सो स्टूडेंट्स, द मैक्सिमम इज 2, राइट. मैक्सिमम इज 2. Maximum how many branches we can give to any carbon? 2. So now put hydrogen. Right. So यहाँ पे हमने 3 कार्बन रखे एंड वी कैप बोथ द ब्रांचेस ऑन सेकेंड कार्बन. वी कैप बोथ द ब्रांचेस ऑन सेकेंड कार्बन. सो कैन यू टेल मी इस ब्रांच का नाम क्या है? इट्स मिथाइल, राइट. और इस ब्रांच का नाम क्या है? मिथाइल. मिथाइल. सो मिथाइल मिथाइल हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. सो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया. ट्राई टू अंडरस्टैंड. 2 2 2 बार क्यों लिखा? बिकॉज बोथ द ब्रांचेज आर ऑन 2. वाई आई रोट डाई? डाई मतलब क्योंकि मिथाइल 2 बार है, और दोनों मिथाइल को भूल जाओ. सो रिमेनिंग 1 2 3 कार्बन आर देयर. सो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन. एनी क्वेश्चंस हियर? 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
2 dimethyl propane is clear. Confirm. चल, so pentane has got 3 isomers. पेंटेन के पास 3 आइसोमर्स होते हैं, 1 2 3, राइट. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आइसोमर्स everything is clear to you. If you still want to ask something, please clear it. आगे चलते हैं डियर. हाँ, इसका दूसरा नाम हम लोग नियोपेंटेन भी लिख सकते हैं. इफ देर आर 2 ब्रांचेस ऑन सेकेंड कार्बन वी कैन कॉल इट नियो ऑल्सो. क्यों नहीं रख सकते दोनों में, वो पहले वाला नहीं समझ में आया, प्लीज़ रिपीट इट. क्या नहीं रख सकते, मैं समझा नहीं सर. यहाँ पे मैंने है ना, यहाँ कार्बन ब्रांच को रखने के लिए मना किया था. ठीक है, कार्बन ब्रांच को यहाँ रखने के लिए मना किया था बिकॉज इसका नंबर 2 है. अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो 2 आएगा और यहाँ से काउंट करोगे तो 3 आएगा. अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री वी हैव टू ऑलवेज कीप द लीस्ट नंबर. सो लीस्ट नंबर मतलब जो कम हो, तो लीस्ट नंबर इज़ 2 और 3, ऑब्वियसली 2. और 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये तो ऑलरेडी पहले बन चुका है. सो दिस कैन नॉट बी रिपीटेड अगेन. एक ही आइसोमर आप 2 बार नहीं बना सकते, सेम टू सेम 2 बार नहीं बना सकते. ओके डियर, नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द आइसोमर टॉपिक आई एम टीचिंग यू साइक्लिक कंपाउंड्स. अब मैं आपको सिखा रहा हूँ साइक्लिक कंपाउंड्स. सो लुक एट द फर्स्ट वन. द फर्स्ट साइक्लिक कंपाउंड इज साइक्लोपेंटेन. लेट्स मेक साइक्लोपेंटेन. साइक्लो मतलब रिंग स्ट्रक्चर. आई रिपीट, साइक्लो मतलब रिंग स्ट्रक्चर और पेंटेन मतलब 5 कार्बन. 1 2 3 4 5. तो एक रिंग बना दो 5 कार्बन की. Make a ring. Okay, please make a ring of this pentane and it is cyclo. पूरे एक रिंग बना देना ऐसे. Now look at this carbon. इस कार्बन की कितनी वैलेंसी यूज्ड है? 1 2. रिमेनिंग 2 आई एम पुटिंग here. इस कार्बन की कितनी वैलेंसी यूज्ड है? 1 2. सो रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन. इस तरह हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन मिलेंगे. सो दिस इज साइक्लोपेंटेन. इज इट क्लियर? साइक्लोपेंटेन. C5H10 इज साइक्लोपेंटेन. राइट, चलो नाउ प्लीज मेक साइक्लोहेक्सेन एवरीवन. सर ये सब टीबी में नहीं है आइसोमर्स, फिर हमको किधर से पढ़ने का? सर मैं करवा रहा हूँ सर, वाई यू वरिंग अबाउट इट. ठीक है, जनरली इन गुजरात बोर्ड दे आस्क ओनली डिफाइन आइसोमर्स, बट हमारे जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है ना, उसमें लिखा हुआ है ड्रॉ आइसोमर्स. तो आइसोमर्स बनाना आपको आना चाहिए. गुजरात बोर्ड, CBSE में तो ओमिट है फॉर दिस ईयर. एंड CBSE दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट बिकॉज ऑफ कोरोना ये टॉपिक आपको अभी ओमिट करवा दिए. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मेक साइक्लोहेक्सेन. एवरीबडी प्लीज मेक साइक्लोहेक्सेन. मेक 6 कार्बन in the form of a ring. Make 6 carbon in the form of ring and arrange hydrogen. Every carbon will get 2 hydrogen. तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन. The name is cyclohexane. Confirm? Cyclohexane clear everyone? Any questions? Yeah, cool. बस तो हमको सिर्फ 2 ही करने हैं. आइदर यू कैन डू साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन. ये 2 मैं इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज इन टेक्स्ट बुक वी हैव गॉट ओनली साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन. एक और साइक्लिक स्ट्रक्चर है हमारे पास स्टूडेंट्स,
ये बेंजीन है, बेंजीन. So let me draw benzene. Now benzene has got 6 carbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So make 6 carbons in the form of a ring. In the form of ring. Now start like this. Single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond. This you need to remember. Alternate है देखो, single double single double single double. इस कार्बन की 3 वैलेंसी यूज्ड है, 2 + 1 3. सो रिमेनिंग 1 हाइड्रोजन. इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी यूज्ड है, सो हियर 1 हाइड्रोजन. दिस कार्बन ऑल्सो हैज़ गॉट 3 वैलेंसी यूज्ड, 1 हाइड्रोजन. This carbon has got 3 valency used, 1 hydrogen. Same way, 1 hydrogen everywhere. So students, here we complete the cyclic compound called benzene. Fine. नहीं ऐसा नहीं है सर, यू कैन मेक साइक्लोब्यूटेन ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. साइक्लोपेंटेन इज आइसोमर ऑफ पेंटेन, नो. साइक्लिक स्ट्रक्चर कभी भी, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कभी भी आइसोमर्स में नहीं आते. आई रिपीट, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ आइसोमर्स. ये स्टूडेंट्स, जो हमारा टाइम था, वी हैव कंप्लीटेड इट, वी हैव क्रॉस्ड 1 hour और पता ही नहीं चला. तो it's time to say bye bye to everyone. Have a nice day and please do prepare all these topics thoroughly well. Bye bye.